morning everyone, this is Shalu Sharma and today I'm going to start your topic that is based on tense and today's turn is past tense. Okay student, I hope you will be enjoy it. Firstly, you have to be consider of this topic on the basis of the present indefinite and then present continuous, perfect and perfect continuous. Okay beta, but now I'm telling about that only on the basis of the past indefinite. Okay, and I will be discuss about that the four parts of past indefinite. First one is a simple, next one is a negative, interrogative, and after that interrogative with negative. Okay students, now we'll start it. Today's date is 22 April 2020 and topic is past tense. Okay students, firstly I will be discuss about that what do you mean by past tense. What do you mean by past tense? बेटा past tense का meaning क्या है? Okay, past tense means that those sentence which express an action, ऐसे sentences जो express करते हैं इस type के action that is that completed, that is नहीं, that completed in past, that completed in past. ऐसे actions जो past में complete हो गए हैं that is a known as a past tense. Okay students, now we will discuss about that. Those sentence which express an action that completed in past, that is known as a past tense. Okay beta, I have already discussed about that. There are the four parts of tense. First one is there are four types of tense. Okay, first one is past indefinite. Past indefinite. Second one, past continuous. Past continuous, that is known as a progressive. Okay, past progressive tense. Past progressive tense. And third one is past perfect. Past perfect. And fourth one is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Okay students, there are the four parts of past tense. First one is a past indefinite, next one is a past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, now we will discuss about that only on the basis of the past indefinite. Past indefinite. Okay students, now can I rub it if you don't mind? Okay students. We have four parts, but now we will discuss about that only the first part, past indefinite. Past indefinite. Okay students, past indefinite. In past indefinite, first rule is here. In past indefinite, rule first. Rule first. In past indefinite, in simple past tense, don't try to be indefinite, in simple sentence we use v second. we use v second. हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे बेटा? v second फॉर्म का. लाइक दैट I space go to the market yesterday. ओके बेटा, तो यूज क्या होगा? आई. गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट. इट मीन्स आई वेंट टू
the market. To the market yesterday. Yesterday. Okay, beta. Next is rule number second. Rule second. In negative, comma, interrogative and interrogative with negative sentence. Interrogative with negative sentence. We use did as a helping verb. Okay. In negative, interrogative and interrogative with negative sentence. We use did as a helping verb. It means that we have two rules. First one is students past indefinite में आपके पास जो रूल अप्लाई होता है वो क्या होगा बेटा? सिंपल सेंटेंस में आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी. जस्ट लाइक दैट, मैं गया, मैं आया, मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं स्कूल गया, वो स्कूल से आई. ओके, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं देन यू विल बी यूज एज अ we second verb in each and every sentence. Like that, if you have a simple sentence, in simple sentence we use we second. Okay, like that, I went to the market yesterday. Rule number second, in negative, interrogative and interrogative with negative sentence we use did as a helping verb. As a helping verb. बेटा आप negative sentence में, interrogative sentence में या फिर negative with interrogative sentence में आप क्या use करेंगे? As a did helping verb. क्या use करेंगे बेटा? Did helping verb. Okay. Same as a, can I rub this matter? Okay. Okay बेटा. Same as a, we have some example. Example is here. Okay. I will be discuss only simple as well as a negative sentence. As well as a negative sentence. Sentence is here. If you have the sentence, rule third, you will be follow the rule third. Rule third क्या होगा बेटा? Rule third. Rule third आप क्या use करेंगे? In simple sentence. In simple sentence. In simple sentence. We follow the structure. We follow the structure. सिंपल सेंटेंस में हम किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? फर्स्ट वन इज अ सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. ओ फॉर ऑब्जेक्ट. ओके, ओ फॉर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इन सिंपल पास्ट. इन सिंपल पास्ट सेंटेंस. इन सिंपल पास्ट सेंटेंस. इन सिंपल पास्ट sentence. Okay beta, in simple past sentence we follow the structure. First one is a subject plus we second plus object. And in negative sentence, अब negative sentence में किस टाइप का स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे? दैट इज द रूल ऑफ 4. ये आपका क्या है बेटा? रूल 4 है. कैसे आप सेंटेंस आप यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट. ओके, सिंपल सेंटेंस में आप यूज करेंगे वी सेकेंड एंड नेगेटिव में आप यहाँ यूज करेंगे वी फर्स्ट. सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द रूल ऑफ नेगेटिव and simple. Okay, now we have some example on the basis of this structure. First one is a simple and after that a negative. Okay student, can I rub this? Okay beta. Now we have some sentence like that. First one is वह मार्केट
गया. ओके, वह मार्केट गया. उसने कहा. ओके, थर्ड वन इज उसने सोचा. ओके, फोर्थ वन वह स्कूल जाती थी. ओके, फिफ्थ वन इज वे मेरी बहन ऑफिस जाती थी. ओके, वे सब्जियां या सब्जी बेचते थे. ओके बेटा, ये आपका सेंटेंस है. लास्ट में क्या है? आ. वह मार्केट गया. लास्ट में क्या है बेटा? आ. उसने कहा. लास्ट में क्या है? आ. किसका साउंड आ रहा है? उसने सोचा. लास्ट में क्या है बेटा? आ. सेम एज अ वह स्कूल जाती थी. देखिए, जाती है हम सेंटेंस यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट जैसे ही थी आ जाए, था आपको पता है पास्ट को रेफर करता है. सेम एज इट इज सेंटेंस. इफ योर सेंटेंस इज वह स्कूल जाती है, दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट. जाती है, जहाँ है का साउंड आ जाए बेटा, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. बट जैसे ही हमने थी वर्ड यूज किया, दैट इज इन पास्ट इंडेफिनिट. ओके, वह स्कूल जाती थी, मेरी बहन स्कूल ऑफिस जाती थी, वे सब्जी बेचते थे. अब देखो, ते थे, थी, सेम एज इट इज थी, यानी ता थी, ते थे, थी, सेम एज इट इज आ, ई, ए. नेक्स्ट इज सेवन सेंटेंस, वे आए. कहाँ से आए? डोंट नो. ओके, एट सेंटेंस इज रूबी कॉलेज गई. अब देखिए बेटा, सेंटेंस देखिए जरा. आ, सेंटेंस में क्या है? लास्ट में आ, सेम एज इट इज आ. सोचा, ए, ई. इट मीन्स सेंटेंस के लास्ट में इफ योर सेंटेंस दैट इज एंडिंग विद आ, ई, ए, थी, ते थे, ओके, ता था, सेंटेंस में लास्ट में आ जाए, दैट इज बेस्ड ऑन पास्ट इंडेफिनिट. अब देखिए, स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए इसमें. आप स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज हियर, वह मार्केट गया. क्या यूज होगा बेटा? ही. जाने को क्या बोलते हैं? गो. अब यहाँ हम गो वर्ड यूज नहीं करेंगे, गो वर्ब यूज नहीं होगी बेटा. यू हैव टू बी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. ही वेंट. कहाँ गया? ही वेंट टू द मार्केट. ही वेंट टू द मार्केट. आफ्टर दैट उसने कहा. कहने को क्या बोलते हैं? ही सेड. उसने ही से को बोला. से फर्स्ट फॉर्म में था, कहने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? से की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ही सैड. उसने सोचा. ही सोचा. सोचने को क्या बोलते हैं? थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा? थॉट. यू विल बी यूज थॉट. दे आए. कम का मीनिंग क्या होता है? आना. दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे. ओके, सब्जेक्ट आपका हो गया दे. वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा? आने को क्या बोलते हैं? कम. देन दे come. Okay, object is not here, then you will be not use any object. रूबी कॉलेज गई. रूबी आपका क्या है बेटा? सब्जेक्ट. रूबी. ओके, वर्ब इज हियर, जाना. जाने को क्या बोलते हैं? गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा? वेंट. क्या यूज करेंगे? वेंट. रूबी वेंट. ऑब्जेक्ट इज हियर, टू द कॉलेज. ओके बेटा. एंड आफ्टर दैट वह स्कूल जाती थी. सेम एज इट इज. ये किसका सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का. वह, शी, लड़की है, यूज करेंगे शी. सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, यू विल बी फॉलो सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट. वह, शी. आफ्टर दैट शी के बाद क्या यूज होगा? जाने को क्या बोलेंगे बेटा? वेंट. शी वेंट टू द स्कूल. She went to the school. मेरी बहन ऑफिस जाती थी. My sister went
to the office. ओके, वे सब्जी बेचते थे. वे, दे, बेचने को क्या बोलते हैं बेटा? सेल. सेल की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? सॉल्ड. दे सॉल्ड vegetables. Okay, they solved vegetables. These are the sentence on the basis of this structure: subject plus v second plus object. These are the simple sentence on the basis of the past indefinite tense. बेटा ये सभी sentences किस पर based है? past indefinite sentence पर based है, and all the structure that is used are subject, v second plus object. अच्छा, conclusion क्या निकाला हमने? किसी भी sentence के end में, किसी भी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस के एंड में आ, ई, ए, लाइक दैट. वह मार्केट से आई, वे स्कूल गए. ओके ओके, वह स्कूल से आया. सेंटेंस के एंड में क्या आया? आ, ई, ए. ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल बी ऐड जाती थी, जाते थे, जाते थे, जाती थी और जाता था. देखिए, जाता है किस टाइप का सेंटेंस है? ता है किसका है? प्रेजेंट का. जाता है हमने यूज़ किया एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ये सेंटेंस किस में आता है? प्रेजेंट. बट बेटा जहाँ हम यूज़ करें जाता था तो ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को. देन यू विल बी यूज अ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट. जाता था, जाती थी, जाते थे. ओके, सेम एज इट इज. आया था, आता था, आती थी, आते थे. तो यूज होगा बेटा किस सेंटेंस में? एज अ पास्ट इंडेफिनिट. एज अ पास्ट इंडेफिनिट. दीज आर द आइडेंटिफिकेशन वर्ड विच आर यूज्ड स्पेशली इन past indefinite sentence. Past indefinite sentence. Okay, if you have the sentence that is based on in negative sense, then you will be use इसी sentences को बेटा अगर मुझे negative में change करना हो तो आप कैसे change करेंगे? You will be follow the structure of, can I rub this matter? Okay बेटा, can I rub this matter? Like that. सेंटेंस है आपके पास, बिजली चली गई, बिजली चली गई. ये सेंटेंस है. नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड वन इज बिजली नहीं गई. ओके, थर्ड वन इज क्या बिजली चली गई. एंड आफ्टर दैट फोर्थ वन इज क्या बिजली नहीं गई. अब ये जो बिजली है, बिजली वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? लाइट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए. किसके लिए यूज़ किया गया है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो क्या बोलेंगे आप? सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सेंटेंस में देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अब क्या बिजली चली गई? लास्ट इज क्वेश्चन मार्क. क्या बिजली नहीं गई? लास्ट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. इस सेंटेंसेस में यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है रूल में कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव यू विल बी फॉलो डिड. डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब. क्या यूज करेंगे बेटा? यहाँ स्टार्टिंग में ही यूज होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट वन इज वी फर्स्ट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट इज क्वेश्चन मार्क. इस सेंटेंस में भी क्या यूज करेंगे बेटा? डिड प्लस सब्जेक्ट. बट यहाँ क्या है? नहीं यूज करेंगे क्या? नॉट. नॉट के बाद यूज होगा वी फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. अब देखिए बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जाने को क्या बोलते हैं बेटा? चली गई. गो, वेंट, गॉन. गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट. ओके, चले जाना, वेंट आउट. क्या यूज होगा? इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट. इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट. अब यहाँ क्या यूज होगा? बिजली नहीं गई, तो क्या यूज करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी डिड नॉट गो आउट, बिकॉज यू विल बी यूज वी फर्स्ट. डोंट ट्राई टू बी यूज वी सेकेंड. नेगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. अब यहाँ क्या यूज करेंगे? डिड इलेक्ट्रिसिटी, डिड इलेक्ट्रिसिटी गो आउट. And after that did electricity not
go out. Okay, these are the example that is based on all parts. ये सभी कहने का मीन्स बेटा एग्जाम्पल्स हैं जो आप डिफाइन करेंगे सभी पार्ट्स के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ वी हैव another example on the basis of that same as the structure form. Okay, in interrogative सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे बेटा? स्ट्रक्चर इज हियर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इज अ क्वेश्चन मार्क. लास्ट वन इज अ क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस है आपके पास लाइक दैट एग्जाम्पल. Okay, example is here. First one is क्या वे इलेक्शन लड़े. सेंटेंस क्या है? क्या वे इलेक्शन लड़े. ये सेंटेंस है आपका. कैसे आप यूज करेंगे बेटा? स्टार्टिंग कैसे होगी? डिड दे. लड़ने को क्या बोलना जाता है? फाइट. डिड दे फाइट. किससे लड़े? इलेक्शन. डिड दे फाइट द इलेक्शन. अब देखिए हमने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया. फर्स्ट वन इज डिड, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज हियर इलेक्शन. And after that you will be use a question mark. बेटा इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव कैसे फॉलो करते हैं आप? इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव. You will be follow the structure of did plus subject plus same as a not plus we first plus object and last is question mark. सेंटेंस है क्या वे इलेक्शन नहीं लड़े. क्या वे इलेक्शन नहीं लड़े. ओके, देन यू विल बी यूज डिड दे नॉट फाइट द इलेक्शन. ओके बेटा, that's it. I hope this pattern that is I think so very beneficial for you and you will be consider this topic, this I think so structure that is completely rewinded for you. Firstly you have to be see this matter on the basis of your mind. आप अच्छे से इस चीज़ को समझिए बेटा कि किस टाइप से कौन सा स्ट्रक्चर हमें कैसे फॉलो करना है. देन आई थिंक सो यू विल बी ईजी टू क्रिएट अ सेंटेंस ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. आप किसी भी चीज़ को जब समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा किसी भी सेंटेंस को मैनेज करना, किसी भी सेंटेंस को समझना. यू नो ऑल द पैटर्न दैट इज़ इन डिस्क्रिप्टिव वे. जितना भी मैटर होता है जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वे को कहीं ना कहीं कन्वे करता है बेटा, दैट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर इट. So please firstly you have to be see this video in a proper way. Then I think so if you will be not a consider of it, then don't try to be hopeless होने की ज़रूरत नहीं है. एक बार में समझ में नहीं आता, उसी वीडियो को बार बार रिवर्स कीजिए, देखिए कि क्या समझाया गया है. आई थिंक सो आई एम टोटली आई थिंक सो effortlessly hard work then that is included in this video. I think so you will be enjoyed. Thank you so much. Thanks a lot.